एडोलेसेंट गर्ल्स का जो काम के साथ जो काम है और उसमें उनकी क्या स्थितियाँ हैं, उसमें जो सलूम्बर दक्षिणी राजस्थान का इलाका है, उसमें क्या स्थितियाँ हैं, किस प्रकार उनका काम में काम के साथ इंटरेक्शन है, उस पर सलूम्बर टीम जो है आजीविका का सेंटर वो प्रेजेंटेशन करेंगे। और डॉक्टर वंदना जो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो डिस्कस करेंगी। और डॉक्टर मंजिमा जो पहले इंट्रोडक्शन दिया था कि प्रोग्राम ऑफिसर American Jewish World Service has done manages a lot of work around adolescent girls and child marriage. माइक आवाज़ थोड़ा सा आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम रीमा है और मैं परिवार सशक्तिकरण कार्यक्रम में सलूम्बर में मदद करती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम विकास है और मैं भी सलूम्बर में जो लीगल एड का काम वो भी देखता हूँ सलूम्बर में। सभी को नमस्कार, मेरा नाम परशुराम है और मैं सलूम्बर सेंटर से स्किल ट्रेनिंग का काम करता हूँ। सभी को नमस्ते, मेरा नाम पायल है और मैं CMLS उदयपुर में हूँ। हमारी जो स्टडी है वो किशोरी श्रमिकों के साथ में हुई है और इसका टाइटल है सोरिया के काम करें, मतलब लड़कियां क्या काम करती हैं। और हम चार साथियों ने इसको किया है और समय समय पे इसका मार्गदर्शन प्रियंका जी और कमलेश सर और निवेदिता जी ने मदद की है हमारी। साथियों, आजीविका ब्यूरो द्वारा चलाए जा रहे श्रमिक सहायता संदर्भ केंद्र में श्रम और प्रवास को लेके मजदूरों के साथ में काम कर रहे हैं। तो मजदूर जब हम बोलते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक छवि बनती है, वो मजदूर पुरुष श्रमिक की बनती है। उससे थोड़ा हम सोचते हैं आगे तो एक महिला श्रमिक की छवि बनती है। और तीसरा कोई अगर हम श्रमिक बोलते हैं तो तीसरा श्रमिक हमारे जहन में भी नहीं आया उस समय में। तो फिर हमने देखा कि तीसरा श्रमिक कौन हो सकता है इन परिवार के साथ में। तो हमने हमारे नज़रों के सामने भी एक किशोरी श्रमिक काम कर रही थी, तो भी हमारे जहन से छूटा हुआ था। हमने देखा बड़ी तादाद में ये किशोरी ग्रुप मार्केट में आ रही है और लगातार ये काम कर रही है। तो फिर हमने इन किशोरी ग्रुपों के साथ में हमने इनकी अपने स्थितियों को श्रम निर्माण साइट पे इनकी क्या स्थितियां हैं, वो किस तरह से काम करती हैं और इनकी श्रम की दुनिया क्या है, इसको समझने के लिए हम लोगों ने इनके साथ में अध्ययन करना चुना। When we try to find out more about these girls, is there any existing knowledge about adolescent girls which we have today? We found that there's very limited. Though adolescent girls is a sector in which a lot of people work, very little is known about their labor. Most of the literature and also work is focused on education, health and other aspects. However, we do know that in India, a lot is known about women's work and the situation of women's work. We know that most of the women in India are employed in the unorganized sector. They have insecure jobs, low-paying jobs, unskilled jobs. And this is especially highlighted for vulnerable sections within the category of women itself, meaning the rural SC/ST women. And an important finding of Srivastava and Srivastava's paper is that single women and adolescent girls, very vulnerable categories in themselves, form the largest workforce in the non-agricultural daily wage sectors of the rural areas. These vulnerable categories face discrimination at the worksite also, with a 35% wage gap between them and the men employed in this sector. We also know that women have to bear a triple burden of work, meaning they have to do their household chores, look after the children in the house, and also work in the labor markets. But we also know that most of this labor goes unrecognized and it is not counted as economic activities. If we try to understand and look at the sectors in which women are most employed, we know that women form the largest workforce in the agricultural sector, followed by small manufacturing, meaning tobacco
production of clothes and so on. And the construction sector is the third largest employer of women, with 5.7 million Indian women being employed in this sector. The condition of women in this sector has been studied sporadically, and most of these studies are concentrated in the urban areas. For example, a study carried out by Tripathi in Odisha highlights that women experience a 25% wage gap within the construction sector. They do mostly unskilled sort of work, and they do not have access to basic facilities at the work site. A study done by Rai and Sarkar in Bangalore highlights the insecurity faced by the women construction workers. 74% of the sample have faced sexual harassment at the work site, highlighting that this is a grave problem which women labourers have to face. To conclude this section, I would like to say that we know that women in India in the construction sector face various forms of insecurity, be it of work or be it in the form of sexual harassment, but little is known of the girls who work in these sectors. So based on our literature review and the growing realization that around us, around the place where we work, there were lots of girls, adolescent girls who were coming to the labour market, we decided to study the relationship between the labour market of the construction sector and the adolescent girls who come into them. More specifically, we wanted to know how does the labour market view these girls and what are the experiences of the girls who work in this sector. In order to further focus our research question, we formulated this framework with the help of literature review and with the help of opinion of experts. So this framework has 4 components, as you can see. The first 2 components refer to wages and basic facilities, aspects of work conditions which have been more or less studied. There is a lot of information available on these facets. They include terms and conditions of work and basic facilities at work. For us, an important factor to be considered over here was the one relating to opportunities at work. We wanted to see whether young girls coming to the labour market, what are the terms and conditions on which they are given the opportunity to work? Do they also have access to regular employment? Do they also have any sort of negotiating power? Do they get a chance to also learn new skills and find a better footing in the labour market? These were important questions for us, and something to which there is no clear answer as of now. Also, because we're talking about such a vulnerable segment of the population, we wanted to understand the condition of security at the workplace, whether they face any sort of harassment at the workplace. This framework sort of guided our inquiry, not just to understand the workplace conditions, but also examine the processes behind these conditions. What are the perceptions of the other workers who are employed in the construction sector, and how do these affect the experiences of the Kishori Shramik? जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि किशोरी श्रमिक और जो श्रम बाजार है उन दोनों के बीच में जो संबंध है उसको हम देखना चाह रहे थे, इसलिए हमने जो मेनली जो फोकस किया हमने किशोरी श्रमिक को किया। हमने अपने कार्यक्षेत्र के अनुभव के आधार पर एक किशोर श्रमिक कौन है उसकी एक परिभाषा बनाने की कोशिश करी है। इसमें 14 से 18 वर्ष की वे युवतियाँ जो श्रम बाजार में अपनी आजीविका चलाने के लिए श्रम के बदले मेहनताना प्राप्त करती है। चूँकि हम जो साथी श्रमिक है उनकी किशोर श्रमिक के प्रति क्या धारणा है, दूसरा जो किशोर श्रमिक है उसकी निर्माण सेट पर उसके क्या अनुभव है, तो इस चीज़ को हम बेहतर और गहराई से समझना चाह रहे थे। इस वजह से हमने जो हमारा शोध का जो प्रकार है उसको हमने गुणात्मक रखा। जो हमने एक तरह से सैम्पलिंग ली, उसमें हमने अलग अलग जो उत्तरदाता थे उसमें हम उनसे हमने डेटा कलेक्शन के लिए अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल किया, जिसमें हमारे जो उत्तरदाता थे वो किशोरी श्रमिक थे, ठेकेदार, कारीगर, बेलदार और उजाला समूह के जो लीडर्स हैं जो कि पूर्व में जो किशोरी श्रमिक रह चुकी है उनके साथ में हमने रहकर अलग अलग विषयों को लेकर हमने बातचीत करी। तो दूसरा यह था कि जो किशोर श्रमिक है उनके साथ में जो दूसरे जो विषय थे जैसे आधारभूत व्यवस्था है, उनको किस तरह की सुविधा मिल रही नहीं मिल रही, इस तरह के बातचीत इस तरह के जो विषय हैं उन पर बातचीत करना तो थोड़ा आसान था, लेकिन जो सेक्सुअल हैरेसमेंट वाली जो विषय हैं उनके ऊपर बातचीत करना थोड़ा मुश्किल था। तो वो हमारे सामने भी एक तरह से खुल के बातचीत नहीं कर पा रही थी,
और दूसरा वो अपने परिवार के सामने भी बातचीत नहीं करना चाह रही थी। ठेकेदार भी उनको मतलब एक तरह से गलत नज़रों से देख रहे थे कि मतलब कैसे हम हमारे बारे में वो गलत चीज़ें बता रही है। तो एक तरह से यहाँ पे हमें मुश्किल आई, तो फिर हमने उनके साथ में एक सहजता बनाने की कोशिश करी, हमने उनके साथ में समय बिताया और फिर एक तरह से दोस्ती बनाई। फिर हमने जो चीज़ निकलवानी थी उनसे, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट में पहले बता रहा था, तो उन चीज़ों को हमने निकलवाया। दूसरा, जो ठेकेदार थे उनकी किशोर श्रमिक के प्रति क्या धारणा है उसको निकालने के लिए भी हमें काफ़ी सारे प्रयास करने पड़े। उनके साथ में भी हमने दोस्ती बनाई, समय बिताया और फिर हमने उनकी क्या धारणा है किशोर श्रमिक के प्रति उनको भी हमने निकलवाया। So here we want to highlight the methodological challenges of doing such sort of a research, where all the stakeholders concerned are not very eager to reveal, the perceptions which they hold in their mind and which sort of translate onto the ground reality. So it was quite challenging for us to talk to all of them. However, our presence in Salumbar, long-term contacts which had been established with Tekidars, with different groups of adolescent girl leaders helped overcome certain challenges. दूसरा, हम ये भी समझना चाह रहे थे कि ये जो किशोरी श्रमिक है वो श्रम बाजार में काम करने के लिए आ रही है, तो वो कहाँ से आ रही है, उनकी क्या प्रोफाइल है। तो फिर हमने इनसे जब बातचीत करी तब हमें पता लगा कि ये जो किशोरियाँ हैं वो ज़्यादातर ज़रूरतमंद परिवारों से होती है और सलूम्बर के जो आसपास के गांव है वहीं से आती है। ज़रूरतमंद परिवार से मतलब है कि जिस परिवार में कोई गंभीर रूप से बीमार है या फिर लंबे समय से कर्ज से पीड़ित परिवार है, तो उन परिवारों में होने की वजह से कोई कमाई करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। इस वजह से इनको कम उम्र में ही मतलब श्रम बाजार में जाना पड़ता है काम के लिए, और इनकी जो शिक्षा है वो भी लंबे टाइम तो मतलब लंबी नहीं हो पाती है। तो ये भी है। और ये जो निर्माण क्षेत्र जो रोज आना जाना साइड तक करते हैं, और ये जो पैसा जो कमा रहे हैं, कैश इनकम जो इनके परिवार में आ रही है, मतलब किशोर श्रमिक कमा रही है, तो वो पैसा उनके परिवार में एक तरह से सहयोग करता है, क्योंकि कमाई करने वाला प्राइमरी कोई व्यक्ति है नहीं उसमें, तो एक बड़ा सहयोग इनकी कमाई का रहता है। दूसरा ये भी है कि जो किशोर श्रमिक है वो 3 से 4 साल एक निर्माण क्षेत्र में काम करती है और उसके बाद में वो काम नहीं करती, उनकी शादी हो जाती है। तो शादी होने के बाद में उनका जो प्राइमरी जो रोल रहता है वो एक तरह से घर का ही रहता है, और कभी कभार उनको जब भी मौका मिलता है तो वो नरेगा के काम करने के लिए स्थानीय स्तर पर जाती है। अधिकतम अति वंचित मतलब Most vulnerable. Most vulnerable. So now we would like to proceed towards the findings of our study and what we understand from them about the work conditions of this group of workers. So one of the most exciting things to observe here was the interaction between adolescents and the labour market. So as we explained earlier, one of the first glimpses of the world of adolescent girls for us was the fact that we saw them on the streets of Salumbar, going to the construction sites, standing at the napas in big groups, all dressed up and talking to each other and singing songs and just basically enjoying themselves. So this was very different from the idea of a worker which we have. The kind of workers we have engaged with, they have all faced the drudgery of daily work, and so this just presented a totally different picture for us. And we were really intrigued, and then we tried to further understand that what was it about this group that made them stand out so much, that made us want to know more about them. So through our observations and through even our interactions with them, we realized that it was basically their adolescence which was appealing to us, which was coming out so prominently in all the spaces which we have mentioned. We could sort of relate it to our own adolescence, when all we wanted to do was not listen to our parents, talk to boys, go to new spaces, hang out with our friends. And especially for this group of girls, when we spoke to them, they said that they do come to the labour market because there's some sort of majburi at home. There is a felt need to go and earn wages. And but at the same time, this is their only opportunity to enter spaces like the city and the markets over there, which are outside their reach in the villages. So it gives them an opportunity to overcome parental restrictions and experience new spaces, and also to sort of explore their sexuality, and just the excitement of being in a new space was something which they mentioned is very important to them. जिस
तरह से पायल बता रही थी कि किशोरी अपने घर से निकलकर अच्छे से तैयार होके और घूमते हुए जब वो मार्केट में आती है तो जो सलूम्बर का जो श्रम बाजार है वो उसको किस रूप में देखता है और उसका किस तरह से वो उपयोग करता है, उसके बारे में हम देखें तो जब वो काम पर आती है नाके पे या फिर काम के लिए खड़ी होती है तो श्रम बाजार में मतलब उनको काम पे रखने के लिए 3 आधार है। एक तो वो सुंदर दिखती कैसी दिख रही है, दूसरा नखरे कर रही है नहीं कर रही है, और थर्ड है कि अगर उसकी पहचान किसी ठेकेदार से है या कारीगर से है तो उसको काम मिल जाएगा। इसके बारे में जब हम FGD के दौरान और इंडिविजुअल जब हमने किशोरियों से जब बात करी तब वो बता रहे हैं कि हाउ देखावारी नखरा करती है, मतलब ये कि अगर काम चाहिए तो आपको अच्छे से तैयार होना पड़ेगा और फिर वहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा और थोड़े बहुत नखरे भी दिखाने पड़ेंगे। इसी बात की पुष्टि जब हम ठेकेदार राजू भाई से बात करते हैं तो राजू भाई कहता है कि नहीं सर ये बात सही कह रहे हो आप कि जनी छोरी ला रहे सेटिंग जमावनी है और तैयार भाई ने घूमती हुए वने काम पर रखा, मतलब जो थोड़े बहुत नखरे करती है अच्छे से तैयार होकर खड़ी रहती है उसको ही हम काम पे रखते हैं, ये ठेकेदार कह रहा है। So now we, as we said earlier, it is the girls' adolescence which is sort of coming out so openly, and it is something which they are doing for their own enjoyment. But this is not happening in isolation. The labour market is very much looking at these factors and selecting the girls on the basis of these factors. So we wonder whether this give and take which is happening between the adolescence of the girls and the labour market, is it on an equal footing or is there an element of exploitation which is present in these conditions? उनके काम का कंडीशन क्या है, वेज और बेनिफिट्स के बारे में हमको थोड़ी बहुत जानकारी थी। इसके अलावा हम उनके अनुभव और उनके परसेप्शन को हम समझना चाह रहे थे, इसके लिए हमने शोध किया। ये एक सलूम्बर की निर्माण साइट का एक चित्र आपके सामने रख रहे हैं जिसमें श्रम का बंटवारा किस तरह से होता है, वर्क ऑफ डिवीजन, जिसमें ठेकेदार होता है सबसे ऊपर की कड़ी। ठेकेदार ठेका लेकर श्रमिकों का चयन करता है जिसमें सबसे ऊपरी कड़ी होती है वो कारीगर होता है। कारीगर यहाँ पर कुशल श्रमिक के रूप में कार्य करता है। उसके बाद बेलदार होता है, वो भी अकुशल श्रमिक के रूप में काम करता है। और सबसे निम्न जो कड़ी है वो है कुली। कुली के रूप में यहाँ पर किशोरियाँ यहाँ पर काम करती हैं। और ये यहाँ पर जो भी काम तय होता है ये मतलब जेंडर वाइज वर्क है, मतलब इनका लिंग के आधार पर काम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो मेंशन करनी चाहिए वो इस पिक्चर में दिखता है कि एक लड़की है 3 पुरुष हैं, लेकिन एक्चुअली स्लाइड में साइड्स में लड़कियों की मेजॉरिटी होती है और 2-3 पुरुष होते हैं। तो सलूम्बर के लेबर मार्केट में आपको बहुत बड़ी संख्या में, अच्छी संख्या में लड़कियाँ मिलेंगी और वो साइड में डोमिनेंट वर्कफोर्स है। इसमें हमने देखा है कि अगर जहाँ पर 7 से 8 पुरुष काम कर रहे हैं उसी अनुपात में लड़कियाँ भी काम वहाँ पे करती हैं। निर्माण साइट पर किशोरियों के क्या क्या काम करती हैं अगर हम देखें तो उनका काम मसाला बनाना है, रेत छानना है, पानी लाना है, ईंट देना है, पत्थर लाना है, ये सारे काम तो किशोरी करती है। इसके अलावा भी कई सारे काम ऐसे हैं कि जैसे साफ़ सफाई करना है, पानी से तराई करना है, ये सारे काम भी वो करती है। जैसे किशोरी मतलब चाय पिलाना है, पानी पिलाना है ठेकेदार कारीगर को, ये सारे भी काम वो करती है। समान काम और समान वेतन की बात करें, यहाँ पर ये 2 कैरेक्टर हैं, कूली और बेलदार। अगर हम देखें तो इन दोनों के काम सेम एक जैसे ही काम है। जहाँ पर किशोरियाँ नहीं होती है तो पुरुष भी वही काम कर रहे होते हैं जो एक किशोरी वहाँ पर कूली के रूप में कार्य करती है। जैसे पत्थर उठाना है, लाना है और सीमेंट का मसाला वहाँ पर बना के देना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो किशोरी है वो पुरुष से भी अतिरिक्त काम करती है। वो इसके अलावा भी काम जैसे वहाँ से पानी से तराई करना है, साफ़ सफाई करना है। काम बंद होने के बाद भी जब बेलदार, ठेकेदार, कारीगर ये सब लोग बैठे रहते हैं तब वो औजार धोती है, सारा काम करती है और वो लोग बैठ के बीड़ी पी रहे होते हैं। साथ में उनको इतना एक्स्ट्रा काम और ओवर टाइम काम करने के बाद भी उनको न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी यहाँ पर उनको मिलती है। और जो सलूम्बर के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो कूली और बेलदार की जो मजदूरी है उसमें 40% का वेज गैप हमको देखने को मिलता है। और दुनिया भर में जो भी शोज हुए हैं उसके बारे में हम देखें तो वो 35% वेज गैप हमको देखने को मिलता है। So what we want to highlight over here is that usually the question posed is of equal wages for equal work. However, we want to put forth that it's not just a matter of equal work. The girls are doing additional gender-based tasks which are kind of invisible and
not accounted for at all in their already underpaid wages. इस वेज गैप को लेके जब हम ठेकेदार से, कारीगर से, उनसे बात करते हैं तो उनका जो काम का जस्टिफिकेशन है वो इस तरह से देते हैं कि लड़कियां क्या काम करती है, लड़कियों को कुछ काम नहीं आता, वो तो मतलब बिल्कुल कमज़ोर होती है, वजन नहीं उठा सकती हैं, उनमें दिमाग ही नहीं होता है। ये बात वो हमको कहते हैं। पर जब वो नाके पर खड़ी होती है, जब उसका काम का चयन हो रहा है, तब ये सब बातें नहीं देख के उसको वो कितने नखरे कर रही है, वो किस तरह से दिख रही है, उसके आधार पर उसका चयन किया। तो ये एक तरह से हमको ठेकेदार का दोहरा व्यवहार हमको नज़र में आता है कि वो दोनों तरह की बात कर रहा है। पर अगर हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, हमारे शोध के दौरान भी हमने देखा, तो इसको यहाँ पर कूली कहा जाता है। कूली का अगर अपन सीधा सा अर्थ अपन देखें तो कूली का मतलब होता है जो वजन उठाता है, और इसमें ज़्यादातर काम वो ये जो किशोरी करती है वो वजन उठाने का ही करती है। तो यहाँ पर मतलब इस तरह से ये बात करते हैं, दोहरी बात। अगर इसमें ठेकेदार कहता है आदमी ज़्यादा वजन उठावे, होशियारी को काम करे, दिमाग को काम करे, और एक वर्णाकारणी छोरियों को 150 रुपये देते हैं और बेलदार को 250 रुपये मजदूरी देते हैं। तो ये एक जो शारीरिक क्षमता के आधार पर मजदूरी तय होती है और लिंग के आधार पर इनकी मजदूरी तय कर रहा है ठेकेदार। So here we want to draw your attention to how the devaluation of girl workers is being justified. Over here, already pre-existing notions of gender are sort of clouding their vision of the work which is actually being carried out, and which is leading to the work being de-recognized and also devalued. And also यहाँ पे लड़कियाँ शारीरिक तौर से कमज़ोर है, we've heard this justification before, but ये कि वो दिमाग से ही काम नहीं करती है और they're irresponsible. I mean, I think that level of assault on a girl was something which was new for us. जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि मजदूरी की स्थिति तो खराब ही है, उसके साथ साथ में जो आधारभूत जो व्यवस्था है निर्माण साइट पर, उसकी स्थिति भी बहुत ही खराब है। जब श्रमिक अपने घर से निर्माण साइट पर काम करने के लिए जा रहा है तो उसके जो आने जाने का जो पैसा है वो श्रमिक को खुद को ही वहन करना पड़ रहा है। दूसरा, किशोर श्रमिक अगर कोई काम कर रही है, काम के दौरान कोई छोटा मोटा चोट लग जाती है तो उसकी जो इलाज का जो खर्च है वो खुद श्रमिक को, किशोर श्रमिक को ही करना पड़ रहा है। जब किशोर श्रमिक से इस बारे में हमने बातचीत करी तब किशोर श्रमिक कह रही है कि साइट माते इलाज वास्ते कहीं नहीं वे पाटा पाटे करें ना घरे मोकली थे। तो इसका मतलब ये है कि जब छोटी मोटी चोट लग रही है तो छोटा मोटा इलाज वहीं साइड पे हो जाता है, फिर उनको घर पे भेज दिया जाता है। यहाँ पे I would like to add कि जो एक ट्रांसपोर्टेशन वाली चीज़ है, it's very interesting, है ना, कि ये this is common, पुरुष श्रमिकों को भी these are the costs that are shifted on to them, but लड़कियों को लेबर मार्केट एम्प्लॉय करना चाह रहा है, लेकिन उस एम्प्लॉयमेंट की जो कॉस्ट है वो लड़कियों के हैं। तो अगर एक जीप हायर हो रही है उनको लाने के लिए, तो उस जीप का पैसा लड़कियाँ देंगी। अगर एक मोटरसाइकिल पे ठेकेदार लड़की को ले जा रहा है तो उसका फ्यूल, उसका पेट्रोल का पैसा भी लड़की देगी, है ना। तो these are the little ways in which costs are shifted to girls. तो आधारभूत व्यवस्था नहीं होने से एक नुकसान ये भी हो रहा है कि जब किशोर श्रमिक जब निर्माण साइट पर काम करती है, काम के दौरान जब उनको महामारी होती है तो उस दौरान वो 3 से 4 दिन की जब छुट्टियों पर जाती है, छुट्टी के दिन का पैसा तो उनको लॉस होता है। दूसरा, जो उससे पहले जितने भी दिन उसने काम किया तो उसका भी पैसा उसको लॉस होता है, और दूसरा जो ठेकेदार के साथ में उसका कॉन्ट्रैक्ट है वो भी टूट जाता है। तो यहाँ पे एक तरह का जो लॉस हो रहा है वो किशोर श्रमिक को ही हो रहा है। दूसरा, इस बात को लेकर जब हमने जो ठेकेदार है उसकी धारणा पूछी तब ठेकेदार ये कह रहा है कि लड़कियां तो इरेगुलर ही होती है, वो काम को कभी गंभीर लेती ही नहीं है। तो एक तरह से उसकी यहाँ पे दोहरा व्यवहार एक तरह से नजर आ रहा है। और यहाँ पे ये भी है कि जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेता है कि और वहाँ पे कोई निर्माण साइट पर आधारभूत व्यवस्था कोई करवाता नहीं है, तो उसका जो सारा नुकसान है वो किशोर श्रमिक को ही करना पड़ रहा है। So the taboo around menstruation means that the girls cannot talk about menstruation at the work site. Also, they do not have any facilities over there, to which they can turn to. So what happens is they have to discontinue their work, and this just sort of feeds into the perception which already exists that girl laborers are गैर जिम्मेदार, वो ठीक से काम नहीं करते और वो regularly काम पर आते हैं। So in a way, it's not only a matter of wages lost, but it is also an opportunity cost in terms of future employment which they could have received with the same pay. निर्माण साइट पे उनके लिए बेनिफिट्स तो नहीं है, लेकिन उसके वहाँ पे अपॉर्चुनिटी कितनी है उसको भी हमने जानने की कोशिश की। तो अपॉर्चुनिटी में
लड़की को बहुत सुंदर दिखना है, सज धज के आना है, तैयार होके आना है, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। और उसके अलावा जो लड़कियां काम करने के लिए आ रही वो बहुत ज़रूरतमंद परिवार से है, तो वहाँ पे बेलदार ठेकेदार उनको अपना फ़ायदा भी देखते हैं और वो अलग अलग तरह से उनको गिफ्ट देते हैं, कुछ लिपस्टिक लाली ऐसी चीज़ें भी देते हैं। तो लड़कियों को लेना पड़ता है, उनके लिए वो मजबूरी है। अगर नहीं लेंगी तो उनके अपने परिवार की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं कर पाएंगी और उस वजह से उनको फिर वो गिफ्ट्स लेने पड़ते हैं। और अगर लड़कियां यहाँ पे रेगुलर अपॉर्चुनिटी नहीं है उनके लिए, तो अपने तरफ से वो मोल भाव करने का अपॉर्चुनिटी खड़ी भी करती हैं, तो श्रम बाजार उनको मोल भाव करने का अवसर नहीं देती है। और वहाँ पे जैसे लड़कियाँ बोलती भी है, ठेकेदार भी बोलते कि छोरिया ने तो 150 रुपये मजदूरी देवे, नी माने नाटक करे तो छोरिया ने कह देवा रवाना कर देवा। और वटेज अगर पुरुष बेलदार अगर कोई बोलता है तो वहाँ 250 रुपया भी देवे। और इसके अलावा ठीक है, श्रम बाजार में जो है अपॉर्चुनिटी नहीं है, इस वजह से लड़कियां काम भी यहाँ पे नहीं कर पाती। एक बहुत ही संवेदनशील विषय पे बातचीत करने के लिए हम जैसे लोग भी इतने आसानी से नहीं बात करते, तो हम इन लड़कियों के साथ में बात करने के लिए गए वहाँ पे, तो इतना आसान नहीं होता श्रम बाजार में बातचीत करने के लिए। ठेकेदार होते, साथी श्रमिक होते, उनके सामने भी। तो इन लड़कियों के साथ में हमने अच्छे रिश्ते बनाने के लिए, दोस्ती बनाने के लिए फिर हम लोगों ने लगातार संपर्क किया वहाँ पे, और हमने ऑब्जर्व भी किया है निर्माण साइट में जाके। तो वहाँ पे हमने देखा नॉर्मली जब बात कोई सामग्री चाहिए होती है उनको, रेत सीमेंट, तो वो हमेशा ठेकेदार गालियों का इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं लड़कियों का नाम के बगैर गालियाँ दे के उपयोग करते हैं। लड़कियों ने बताया भी हम लोगों को, ठेकेदार, कारीगर, बेलदार सब गालियाँ देवे, कहीं ने मसाला, रेती चीज़ें अलग अलग मंगावे मारे। और वहीं पे मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि अलग अलग चीज़ें देते हैं ठेकेदार, गिफ्ट वगैरह, तो लड़कियों को लेना पड़ता है। और ये लड़कियां भी बोलती है ठेकेदार, कारीगर गालियाँ देवे, हाथ भी पकड़ी लेवे, ज़बरदस्ती भी करे और पाया भी आले, मस्ती करे, हाथ पकड़े हमारे हाथ में। तो इसका मतलब है इस हरासमेंट किस हद तक जा सकता है। कई बार जो है सेक्सुअली हरासमेंट होने की संभावना भी उनके साथ में बनी रहती है। और ये सब चीज़ें होते हुए भी साथी श्रमिक और ठेकेदार नज़रअंदाज करते हैं उनके लिए, और साथी किशोरी श्रमिक भी इस बात का विरोध नहीं कर पाती हैं वहाँ पे, और इस तरह का माहौल वहाँ बन जाता है। Also, one of the ठेकेदार्स with who we spoke with was actually quite a provocative exchange. In that, he said that everyone does that. I mean, no one is actually, blameless over here. Everyone somehow contributes to it, even if there's harassment happening at a workspace. It is not like anyone is going to intervene and stop it. So it's sort of become a systemic issue at the workplace, which the girls have to deal with regularly. मार्केट में ही एक और दूसरी तरह का मार्केट है जिसको हम नाका बोलते हैं। तो इस नाके पे अलग अलग गांव से वहाँ पे श्रमिक आते हैं और किशोरी श्रमिक भी आती हैं। तो इस मार्केट में किशोरी श्रमिक अलग खड़ी होती हैं और पुरुष श्रमिक अलग खड़े होते हैं। तो वहाँ पे हमने जब ऑब्जर्वेशन किया तो पुरुष साथियों की तरफ से ये देखने को मिला कि वो अपने स्किल का मोल भाव कर रहे हैं, शारीरिक ताकत का मोल भाव कर रहे हैं, अपनी शारीरिक क्षमता का मोल भाव कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक तरह से पुरुष के साथ में तो वहाँ मोल भाव दिख रहा है, लेकिन लड़कियों के साथ में हमने देखा लड़कियों ने भी मतलब यहाँ पे ठेकेदार उनके ना ही स्किल को देखते हैं, ना ही उनकी शारीरिक क्षमता को देखते हैं, ना ही उनकी अनुभव को देखते हैं। केवल वो देखते हैं तो उनकी सुंदरता को, वो कितनी सज धज के आई है, कितनी सुंदर दिख रही है, इस चीज़ को देख रहे हैं। तो और उसके अलावा जो बाकी और आने जाने वाले जो लोग हैं मार्केट में, वो भी उनको देखते हैं। और लड़कियों ने हमें बताया भी, कभी काम वाले नाका मते खड़ा रहे, वही ठेकेदार भी आवे तो हाउस होरिया ने देखे, पिज्जा मनक भी बुरी नज़र से देखते हैं। और यहाँ पे हम लोग मतलब समझ में नहीं आता कि यहाँ लड़कियों के साथ में श्रम बाजार पे उनके श्रम का मोल भाव हो रहा है या उन किसी और चीज़ का मोल भाव है, तो हमको कुछ समझ में नहीं आया पे। So over here we're trying to explore the Naka as a site where girls have to come regularly. How do these girls experience the Naka? We kind of know that when it comes to male laborers, the Naka is a site where the labor power is sold. It's sort of being bargained over.
But however, the Naga is sort of configured differently for the girls. Even when they come over there, they stand in separate groups. Their spatial setting over there is separate. It is a space where the bodies are literally on display to not only the other actors in the labor market, but also to a lot of other people who cross through the Naga. So as this girl says, she experiences it quite starkly, that she feels that her body is always under the scanner. So we're just trying to understand that is the Naka really a site only for the girls to come and find employment, or is their sexuality also somewhere being assessed in this whole? तो अभी तक जो भी हमने पिछली स्लाइड जो भी देखी है उसमें किशोरी श्रमिक की जो निर्माण साइट पर जो छवि बन रही है वो कुछ अलग तरीके की है। यहाँ पर जो ठेकेदार है वो किशोर श्रमिक का जब चयन कर रहा है उसमें तो उसके नखरे देख रहा है, कैसी सुंदर दिख रही है, उसके साथ में फोन पर बात कर रही है, तब तो उसका चयन करता है। दूसरी तरफ जब वो किशोरी श्रमिक जब निर्माण साइट पर आने के बाद में दूसरे जो साथी है उनके साथ बातचीत करती है, खुल के हंसती है या उनके साथ बातचीत करती है, तब उसको चालू कहा जा रहा है वहाँ पे। और वो अगर फोन पे बात नहीं कर रही है तो वो ईमानदार है। तो यहाँ पे एक तरह से जो ठेकेदार का जो व्यवहार है वो दोहरा व्यवहार है। और इस दौरान जब जो किशोरी श्रमिक है वो इस बीच में कहीं न कहीं फंसी हुई है, उसको दोहरी भूमिका उसको निभानी पड़ रही है। एक तो उसको नियमित काम चाहिए, इस वजह से वो जो ठेकेदार जो भी चीज़ उसके साथ कर रहा है उसको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, और उसको एक तरह से नियमित काम बने रखने के लिए वो हर चीज़ को यहाँ पे मैनेज कर रही है। और इसमें जब ठेकेदार से जब बातचीत हुई तब ठेकेदार कह रहा है कि डंगू और ईमानदारी काम करे, वरना मतलब उसको काम पे रखते हैं। तो यहाँ पे एक ईमानदारी झलक रही है। दूसरी तरफ जब ठेकेदार से एक और बातचीत निकल के आई कि जो छोरी हुदी वे वने काम पर बराबर बुलावा, और जा छोरी फोन मत बात करे, सोयल वाले मस्ती करे, डंगू काम नहीं करे, वने कही देवा कि कालू काम मत आवे मत। तो मतलब एक तरह से यहाँ पे वो हर तरह का जस्टिफिकेशन वो कर रहा है यहाँ पे। So over here we are trying to look at the terms and the language which is used by various actors in the labour market, most prominently the contractors, to talk about the girls and the work which they do. So on one hand, we've got to hear is that they want girls with who setting jama sake, या फिर girls who they feel are available. This is the language which is used at the time of hiring this workforce. But when it comes to sort of accounting for their work and paying them for the work which they do, the language suddenly changes, and the discourses of a good worker who doesn't actually do the behavior on the basis of which they had hired these workers. So we sort of see a contradiction between in the perceptions of the male actors in this space, and we also know that in a way this is affecting how the girls have to present themselves. They have to live up to these norms which have been set for them by the labour market. They have to be good workers, yet they have to flirt with the co-workers or go along with the advances which are being made by the contractors. इस दौरान हमें एक और नई चीज़ समझ में आई कि किशोरी श्रमिक है उनको निर्माण साइट पर काम की बढ़ोतरी का कोई अवसर नहीं मिलता। तो काम की बढ़ोतरी को लेकर जब हमने किशोर श्रमिक से बातचीत करी तब किशोर श्रमिक कह रही है कि माने कौन कारीगर को काम देगा, माने तो यही काम बढ़िया लगे। मतलब एक तरह से क्योंकि उनको जब चयन हो रहा है उनका नाके से, तब तो उनको स्किल के बारे में कोई पूछा नहीं जा रहा है। तो इस वजह से वो भी कह रही है कि हम स्किल वाला काम सीखे करें भी क्या। और दूसरा, उनके सामने ऐसा कोई श्रम बाजार में कोई रोल मॉडल भी नहीं है जो उनको एक तरह से मोटिवेट कर पाए। जब इस चीज़ को लेकर हमने ठेकेदार से बातचीत करी तब ठेकेदार कह रहा है कि जो छोरिया ने काम हिकवारी इच्छा हो बने काम हिकावा, यानी कि जो लड़कियां आगे से कहती हैं कि हमें काम सिखाओ, तब हम वो ठेकेदार काम सिखाते हैं, न कि वो आगे से जाकर उनको कभी काम सिखाने का एक तरह से प्रयास करते हैं। So over here, another often repeated narrative which we found in the labour market was that girls do not really want to learn, they do not use their brains while they're working, and this is the reason why most of them do not progress. A few of the ठेकेदार्स we spoke to, they said that we are ready to teach them, but it's just that they do not want to learn. So when we are trying to explore how did this narrative come to be about, why are the girls described in such a language, we see that the girls are saying that no, it's not like we do not want to learn this work. We do want to learn this work, but we know that once we go ahead, there are few opportunities for us. We have never seen a girl or a woman who's working as a skilled worker in this sector. So, and it's also something which is coming from our experience where we have tried to, induct girls into the work of masonry. It's been really difficult for them to find work opportunities as a skilled worker. So that's why the low motivation stems from. That is the reason. So based on all of this discussion,
discussion till now, we would like to say a few things. First of all, as we have seen through our observations in the labour market of Salunda, most of the construction sites have at least 5 to 6 girl workers who are working over there. And in a way, there is a preference for hiring adolescent girl labourers. So the reason behind this can be clearly seen that they can be hired at really depressed wage rates. There is a 40% wage gap between the male worker and the girl workers. So they provide a really cheap sort of labour force, and also that since they are available in big numbers, they sort of serve as a reserve army of labour. They serve as a buffer force in lean times, and so that is why they sort of prefer to work. Also, it is easier to deny them the identity of a worker in the language used by the labour market, as well as in their actual practice towards the girl workers. As we have seen throughout the presentations, whenever any of the workers we've been talking to, they have always described these girl workers only as girls, as choria, as ladkiyan who come into the market, and not actually as workers. So on the basis of this, it is very easy for them to deny the girls basic rights to negotiate for better wages, rights to oppose the kind of sexual harassment they are facing. Any sort of worker-related rights are denied to them. Also, their status as a young girl labourer is used to give them work which the male workers refuse to do. They are told to do tasks which are similar to the tasks they do at home, tasks of cleaning and serving tea to the ठेकेदार. But at the same time, this image of a young worker does not elicit any sort of responsibility from the other workers who are present at the work site. They do not feel any responsibility towards ensuring the security of the girl workers who work over there. So we just wanted to sort of highlight this contradiction which is present. Also, we've seen throughout this presentation that the theme of sexuality is sort of an undercurrent of the girl. The adolescence and sexuality of these young girls are the basis on which they are selected for work. It is sort of play at the work site as well. It is what their work opportunities are also tied to. Yet there is this tendency towards shifting the blame onto the girls themselves and calling them chalu, or calling them various names. So we see that the labour market has a tendency to not exploit only their labour but also their sexuality, and yet blame the girls themselves for it. All of the concluding thoughts which we've presented till now, we are aware that they're based on a very small sample size. They've been carried out through interviews with various actors of the labour market in the limited geographical area of Salunda, and that we have to be a bit cautious before we generalize these findings and talk about the construction market as a whole. However, it is possible that these dynamics may be replicated in other rural areas where girl workers are increasingly entering the rural markets. And we can see that this is an area which needs to be further explored. This is a knowledge gap which needs to be addressed. On an ending note, this is one of the thoughts which has been playing around in our mind. There is this huge debate which is going on, which talks about the drop in female work participation rates, and especially about this age group of 15 to 24, which has seen a rapid fall in the workforce participation rates. So, and the question which is normally asked is that why are the girls still not working? What are the reasons behind it? But no one has ever, we want to say that we can look at this question in another way. We can try to say that why should the girl workers stay in the labour market if the labour market is not creating a conducive environment for them, if the labour market is not giving them opportunities on an equal footing. So I think this is also another thought where we would like to say that it's worth exploring this thread further. अभी तक की हमने जितने भी हमारे फाइंडिंग और कंक्लूजन देखा, उसको लेके हमारी जो भी समझ अभी बनी है निर्माण क्षेत्र और उसमें काम करने वाले ठेकेदार, कारीगर और किशोरियों के बारे में, तो जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी, इसको हम हमारे जो कलेक्टिव है संगठन, हमारे केंद्र से जुड़े हुए हैं संस्थाओं, उनके साथ हम ये जानकारी हम शेयर करेंगे, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा लोग ठेकेदार और कारीगर लोगों का संगठन है, और वहाँ पर
ये शेयरिंग करने का ये कारण है कि उनके साथ थोड़ा अच्छा माहौल क्रिएट हो वहाँ पर निर्माण साइट पे, और वो भी इस विषय के बारे में थोड़ा बहुत सोचें। साथ ही किशोरियों के साथ हमने काम के अनुभव और स्टडी से हमको पता चला कि उनको किसी भी तरह की कानूनी जानकारी नहीं होती है, न तो उनके पास कोई हाजिरी कार्ड भी वो लोग नहीं रखते हैं साथ में, और उनके लिए क्या गलत है क्या सही है, महिलाओं के संबंधित भी और कानूनी जानकारियाँ हैं, श्रम कानून भी हैं, किसी भी चीज़ के बारे में उनको जानकारी नहीं है। तो एक हमारा ये कदम भी होगा कि उनको उनके साथ ये जानकारी हम शेयर करें। दूसरा, हमारी जो प्रशिक्षण और नियुक्ति सेवा है उसमें जो हमारी परामर्श की काउंसलिंग की जो प्रोसेस है उसमें हम थोड़ी संवेदनशीलता लाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर जब ट्रेनिंग होती है OJT हम करवाते हैं या किसी लड़कियों के साथ ट्रेनिंग करवाते हैं तो वो काम मतलब ट्रेनिंग लेने के बाद वो काम नहीं करती है, कई बार ऐसी समस्या आती है। तो अगला जब हमारा उनके साथ जो भी काउंसलिंग होगी तो वो थोड़ी संवेदनशील होगी। और जो हमारी सलूमर की निर्माण साइटें हैं वहाँ पर किस तरह से हम इंटरवेंशन कर सकते हैं, हमारा अगला हस्तक्षेप क्या रहेगा, उसके बारे में भी हम थोड़ा अभी टीम में बैठ के बात करेंगे। थैंक यू। Thank you. Very good. We'll just get started. All right. Because the reason for that is that really the academic world is not in step with the really detailed micro findings that you guys are doing. I mean, I have to admit it, being a part of the academy myself, we're really not so much in step with all of this. That's number one. The second very important thing that your particular presentation has done is that you have given birth to a new sociological category, and that is adolescent young girls as laborers. You know, all the discourse that you have about work and workers, as you very rightly pointed out, is about men and young men for that matter. It is not about young girls. So the invisibility of females and women, in fact, is not new in that sense. It has long been a recognized lack in academic discourse, and you had famous economists like Esther Bozrak, एक डेनिश इकोनॉमिस्ट थी 1970s में, उन्होंने एक बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट किताब लिखी थी विमेंस रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो उसका बेसिक कहना यही था कि फीमेल्स इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट नहीं है। तो उनका सारा डिस्कोर्स इसी पे बेस्ड था कि women should come out into the formal sector. But here what you are detailing so importantly is that, and everybody, all the presentations, is that all this labor capital accumulation in fact is happening in the informal sector, in which women are playing increasingly an important role. So I know there's this discourse about withdrawal of females from the labor participation force, but at some level I find it a very problematic discourse, because once again it is giving fodder to the idea that women don't work, or that it's a luxury for them to be able to withdraw from the workforce. So in real situations, that kind of autonomy, is actually also a very class-based issue. So, and again, this proves that, there's a very strong class angle here that you are underlining. मैं एक बार ट्रांसलेट कर दूं, आपने जैसे बताया तो वंदना जी यहाँ पे बोल रही हैं। पहले तो उन्होंने बधाई दी आप लोगों को इस अध्ययन के लिए, और वो कह रही हैं कि जिस विद्यालय में जो शोध होता है उसमें इस तरह की जो फाइंडिंग्स हैं, जो एकदम धरातल पे ट्रेंड्स हमको दिखते हैं, वो मिस आउट हो जाते हैं, और वो आपने बहुत अच्छी तरीके से कैप्चर किया है। उन्होंने ये बोला कि सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है आपकी स्टडी का वो ये है कि सामाजिक विज्ञान के लिए आपने एक नई श्रेणी सामने रखी है, ये जो किशोरी श्रमिक की है, जिसको एक सोशियोलॉजिकल तरीके से समझना पड़ेगा, है ना। और फिर वो ये कह रही है कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जो महिलाओं का आर्थिक कंट्रीब्यूशन है वो तभी हो पाएगा जब आप उनको फॉर्मल सेक्टर पे लाओगे, लेकिन आपकी प्रस्तुति से ये समझ में आ रहा है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो ऐसी है कि काम एक्चुअली इनफॉर्मल सेक्टर में बढ़ रहा है,
तो आपको इनफॉर्मल सेक्टर की हालतें और महिलाओं की हालतें इनफॉर्मल सेक्टर में क्या है उसको समझने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और वो ये बोल रही है कि ये जो बात की जाती है ना कि लड़की मतलब महिलाएं काम करे ना करे लेबर फोर्स में, वो शायद इसलिए नहीं आती क्योंकि उनके पास ये लग्जरी है, ये सुविधा है कि वो देखे कि अब उनको सूट करता है कि नहीं करता है। और वो बोल रही है कि एक्चुअली जो गरीब वर्ग की महिलाएं हैं उनके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है। जब मजबूरी है तो जो भी श्रम बाजार में हो रहा हो आपको काम करना ही पड़ेगा। So the other thing that's coming to my mind is, एक इंग्लिश में कहावत है, the more things change, the more they stay the same. तो जो women's labor force participation और उसका neglect है, वो भी आज तक 21st century में वही का वही बन के रह गया है कि डोमेस्टिक लेबर को कोई मान्यता दी नहीं जाती है। एक किताब है मारिया मीज, जर्मन सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने पूरे विश्व स्तर पे इस प्रॉब्लम को देख के एक किताब लिखी है, पेट्रियार्की एंड कैपिटल accumulation on a world scale, and the crux of the argument is that social reproduction is impossible without domestic reproduction in which women play a central role. तो अगर आप उसको नहीं देख रहे तो आपको ना तो इकोनॉमी क्या है वो समझ आ रहा है, ना सोसाइटी क्या है वो ठीक से समझ आ रहा है, सोशल रिलेशंस क्या है वो आपको ठीक से, मतलब आप you're just on a wrong footed track from the get go. So once again this is the more things change, meaning that we are in the brave new 21st century where women are apparently emancipated, you know, in whatever sense you understand that. लेकिन 21st century में women काफ़ी आगे बढ़ गई हैं। हमें हर डेटा सेट वही बता रहा है कि women आगे बढ़ गई हैं, economic growth में contribute कर रही हैं, this and that. But here, this is the brutal reality. Sexual harassment of young girls at the work site where they're commodifying themselves, and that's the tragedy, you know. एक काम पाने के लिए अपने आप को एक commodity बना देना is the tragedy of this whole thing. And this is again, you know, Marx, among others, Marx had said this: commodification of everything is fundamental to capitalist reproduction. ये इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती है जब तक आप हर चीज़ को एक मूल्य ना दे दें, वैल्यू ना दे दें, प्राइस ना दे दें। तो इसका एक बहुत विविड इलस्ट्रेशन अगेन गिवन इज दिस पैथोलॉजिकल सेल्फ कमोडिफिकेशन। तो उनके अंदर क्या बीतती है, बिकॉज दिस इज अ माइक्रो स्टडी, you can actually sit down with these young girls and talk to them a little. You know, what is a violence that they experience when all the things that you describe are uttered in front of them. They just have to smile and keep going. उनको तो चाय पिलाना है, because otherwise they'll be kicked out, and who knows what happens afterwards, right? So this is the extreme precarity, extreme vulnerability of this very, very, very invisible group of young girls. There's another scholar, Craig Jeffrey, उनका नाम, उन्होंने अभी हाल में किताब लिखी है जिसका नाम है टाइम पास। वो मेरठ में यंग बॉयज़ जो पढ़ के थोड़ा सा जिनको काम नहीं मिल रहा है, वो मेरठ में बस स्टैंड में इकट्ठा है, साइकिल स्टैंड में इकट्ठा है, काम नहीं है। एंड दैट्स द फंडामेंटल रीज़न इज दैट दे आर वाइलिंग अवे टाइम पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक दूसरा ही स्पेक्ट्रम देख रहे हैं कि ये टाइम पास नहीं है, यहाँ पे सेम एज ग्रुप of girls is working hard to enable social and economic reproduction. So I think we should invite Craig Jeffrey and ask him to write a whole another book on these young women in Salumbar. I don't think he should be lettered at all by the fact that the scope of the study is small, because it is a very foundational study, and you know, I'm sure as you expand this very project further with more ethnographic narratives, narratives in which confidence building, as you have discovered, is a very important thing. You will have deeper and deeper critiques and narratives about exactly how capitalism reproduces itself. So in a sense, you see how these young women
ये ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़ा डिस्कोर्स है ना, कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, लेकिन ग्रासरूट्स में वो किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है, कि कितने बड़े चेंज में these youngers are involved and how their life moves and the dispensability. 3-4 साल इन्होंने काम किया and that's the end of their career, their use value in that sense for this particular process. उसके बाद there's a whole another thing in which they have to get into. So this very vulnerable age group where actually young people are still discovering themselves, learning about the world, how violently transformative it is for them. I think you're bringing that out. There's something else I wanted to say. मैं इसका अनुवाद कर दूँ एक बार जल्दी से। तब तक you also remember what you हाँ, तो देख लो या कंस्ट्रक्शन वर्क में देख लो, वो डीवैल्यूएशन वाला जो ट्रेंड है वो आपको कॉमन मिलेगा, सामान्य मिलेगा। वो ये कह रही है कि हमारी अर्थव्यवस्था के नेचर में है इस तरीके का महिलाओं का जो एक्सट्रैक्शन है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमिक सिस्टम। एंड उसमें ये है कि अगर आप हमारे पूरे ग्रोथ के पैटर्न को देख लो, उसमें महिलाओं का जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है स्पेशली घर चलाने में, उसको कभी फैक्टर इन नहीं किया जाता और ये पूरी ग्रोथ उस पर एक्चुअली बेस्ड है और वो वैल्यू आपको कहीं दिखेगी नहीं। तो ये जो बात है कि महिलाओं ने बहुत प्रोग्रेस कर लिया है, हम अब एक नए ज़माने में हैं, उसके कॉन्ट्रास्ट में ये स्टडी आती है जो एक टिप्पणी देती है कि हमारी अर्थव्यवस्था में ये बीमारी है कि वो हर चीज़ को कमोडिटी बना देती है, हर चीज़ पे एक सस्ता सा प्राइस लगा देती है और फिर उसका उपयोग किया जाता है। तो वो इसी तरह से बता रही है कि ये स्टडी का स्कोप छोटा है बट उनके व्यू में इम्पोर्टेंट स्टडी है। और अगर हम और ऐसे एथनोग्राफिक नैरेटिव्स को एक्सप्लोर करें तो इसकी रिचनेस को बढ़ाई जा सकती है और ये ग्लोबलाइजेशन के ट्रेंड, कैपिटलिज्म के ट्रेंड, अर्थव्यवस्था के ट्रेंड पे एक बहुत शार्प टिप्पणी देने की अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है। Lots of notes, but I don't want to take more time, and I know you also have to say what you have to say. So congratulations, excellent, important, new, challenging work, and I can't compliment you. पूरी दुनिया में ग्लोबली पॉलिसी में जो किशोरियाँ हैं वो आजकल स्पॉटलाइट में आ चुकी हैं, 3-4 मतलब पिछले 5-6 साल में, और सिर्फ विश्व में नहीं मतलब, और उनका जो उनको तोला जा रहा है उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या जीडीपी के उस रूप में। तो वर्ल्ड बैंक वगैरह स्टडीज़ दिखा रहे हैं कि अगर आप अपनी लड़कियों को पढ़ाओगे या स्किल करोगे तो इतना आपका जीडीपी बढ़ जाएगा, आपका नेशनल कमाई बढ़ जाएगा। तो ग्लोबली भी वो बहुत ही, जैसे औरतें थी एक ज़माने में डेवलपमेंट वर्ल्ड में, कि आप औरत को अगर पढ़ाएंगे और सशक्त करेंगे तो आपका इकोनॉमी बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही आजकल लड़कियों के साथ हो रहा है और हम वही हम नेशनल स्तर पे भी वही देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटियों के किशोरियाँ एक सॉर्ट ऑफ स्पॉटलाइट में आए हैं, लेकिन अपने अस्तित्व के बलबूते पे नहीं। तो एज ह्यूमन बीइंग्स उनका वर्थ, ये बातचीत जो चल रही है वो एज इकोनॉमिक टू एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ समथिंग एज डेवलपमेंट, ऐसे उनको दिखाया जाता है। सॉरी मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है, मैं कोशिश करूँ। तो एक बात तो ये जो बिगर स्टोरी प्रोफेसर श्रीवास्तव बोल रहे थे आज सुबह, व्हाट इज द बिगर स्टोरी ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स एट द मोमेंट, दिस इज द बिगर स्टोरी दैट वी आर लोकेटेड इन। और उसके इस माहौल में जो बहुत सारे हमारे पार्टनर्स भी शोध कर रहे हैं, वो एक चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं कि ये एडोलेसेंट गर्ल्स, ये कैटेगरी जो और आपने जो ये किशोरी श्रमिक जो एक नया शब्द मैंने सुना है और जो अपने आप में एक कंसेप्चुअल कैटेगरी आप उसको रियली बिल्ड कर सकते हैं। सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि या तो चाइल्ड राइट्स एज चिल्ड्रन अप्रोच करते हैं, या विमेंस राइट्स ग्रुप काम करते हैं, चाइल्ड लेबर में काम करते हैं, या जेंडर एंड वर्क में काम करते हैं। ये एडोलेसेंट वर्कर या एडोलेसेंट गर्ल्स एज लेबरर्स, ये क्या है? एंड इन जनरल एडोलेसेंट गर्ल्स
एक बहुत चैलेंजिंग ये है काम करने के लिए, क्योंकि एक तो एक्सेस नहीं मिलती है आपको, आप इंटरव्यू कैसे करोगे? एक्सेस मिलती भी है तो आपको इन्फॉर्म कंसेंट आप कैसे लोगे? आपको उनके गार्डियन से लेना पड़ेगा, और अगर आपको एक्सेस मिल भी गई तो 3 महीने में या तो वो चली जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी, या वो कहीं और काम पे चली जाएगी। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट पॉपुलेशन है जिसको स्टडी करना एक अलग सा चैलेंज है। और मुझे और थोड़ा सा ये बैलेंस मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि हमारे नज़रिया में भी हम adolescent girls या workers, adolescent girls who need to be protected और workers who need to be enabled to have their rights, to access their rights, ये जो बैलेंस है कि हम इनको कैसे देखें, ये एक complicated चीज़ है। I would have liked to know more, ये जो adolescent workers की कैटेगरी है उसके ऊपर डेटा क्या है हमारे नेशनल्स में? Same question, but there is none, right? या लाइक इवन हेल्थ में आप 15 साल के नीचे NFHS में आपको नहीं मिलेगी इनका डेटा। कहाँ पे आते हैं इनका डेटा? यंग मदर्स, जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज बूम्स लेस, उसी मोमेंट पे उन पे वो डेटा निकल के आता है। तो हो सकता है हो डेटा, आई डोंट नो, बट इट्स वर्थ लुकिंग इनटू। आप लोगों ने एक शुरू किया था ये बात करना कि उनमें क्या बदलाव आता है, जैसे वो बाहर जा रहे हैं मार्केट में, आप देख रहे हो पब्लिक प्लेसेस में, मतलब जो बहुत बड़ी बात है काफ़ी जगहों में कि आप यंग औरतें who are not married, who are although I don't know how many of them were married or not, वो आपने बताया नहीं, सारे unmarried, तो वो working after they are married, sort of a breaker, their engagement with the labor market. तो उनमें क्या बदलाव आता है? क्योंकि हमारे नैरेटिव्स में ये तो है, जैसे पार्टीशन के टाइम से जो वेस्ट बंगाल से, जो ईस्ट बंगाल से आए थे और जो लेडीज़ ने काम करना शुरू किया, ये जो मजबूरी में घर से बाहर जाके काम करना या शहर में जाना या माइग्रेट करना, ये औरतों पे एक अलग इम्पैक्ट होता है, बिकॉज इट रियली वो लिबरेटिंग और एम्पावरिंग भी हो सकता है। वो एक झलक आपने दिखाया उस चीज़ में, लेकिन उसको पूरा हमारे मतलब हाथ पकड़ के ले नहीं गए उस दिशा में। तो इट्स आई वुड बी क्यूरियस टू नो मोर कि उनमें ये बदलाव क्या है। एक और चीज़ जो मुझे लगा कि मैं क्यूरियस हूँ उसके बारे में, कि ये हिस्टोरिकल थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट, कि ये कब से शुरू हुआ, ये क्यों हुआ? क्योंकि एक तरीके से ये सोशल नॉर्म का ये एक बदलाव है, ये नहीं होता था वहाँ पे और होने लगा है। तो इसके पीछे बड़ा कहानी क्या है, स्ट्रक्चरल फैक्टर्स क्या है इसके, जो क्योंकि हमें लगता है कि ये सामाजिक कायदे और ये बदलते नहीं हैं, लेकिन ये बदलते हैं। ये किस कंडीशंस में बदलते हैं, और आगे भी हो सकता है कि वो शादी के बाद काम करे वापस, वो भी बदल सकता है, मतलब तो ये बदलाव का जो एक सोशियोलॉजी है इन दैट सेंस, वो समझने के लिए भी ये इट कैन इलस्ट्रेट समथिंग फ्रॉम देयर। मुझे लगा ये जो सेक्सुअलिटी का जो अंडरकरंट है, 2-3 चीज़ें लगा। एक तो ये जो कमोडिफिकेशन की बात आपने कहा वंदना जी, लेकिन मुझे लगता है कि ये तो पूरा दुनिया में ये है, मतलब आप म्यूज़िक वीडियो देखो या तो इट इज़ एक्सेप्शनलाइज नहीं करें उसको, उस चीज़ को, क्योंकि ये पूरा दुनिया में शहरों में अभी मैं बनारस गई थी और गर्ल्स हैड रेड हेयर तो इट्स नॉट, ये पूरा एक ब्रॉडर इशू है जो सो वी शुड नॉट लूज साइट ऑफ दैट ब्रॉडर पिक्चर। ऑन द क्वेश्चन ऑफ इनविजिबिलिटी, ये हमें पता है कि लड़कियां श्रम करती हैं घर के अंदर सुबह से शाम, मतलब पानी भी वो लाती हैं, सब कुछ वो करती हैं, तो ये इट्स नॉट सो मच अदृश्य होना, बट इट इज़ एन अनदेखी और अनडॉक्यूमेंटेड नकारना। इट इज़ जो आपके उसमें है, जो डिस्क्रिमिनेशन और जो आपने लोकेट किया है जेंडर रोल्स के उसमें, लेकिन लड़कियों का श्रम एक जगह पे बहुत साल
बहुत विजिबल, हाइपर विजिबल रहा है वो ट्रैफिकिंग के मामले में रहा है। इनफैक्ट मुझे याद है 2004 में हम एक स्टडी करे थे राजस्थान में, और वो स्टडी एक UN वो था कि आप एक्सप्लोर करो ट्रैफिकिंग कहाँ हो रहा है। तो हम गए जगह जगह, और एक जगह था जहाँ पे लड़कियाँ जा रही थी उदयपुर के बाहर के इलाकों से, वो ऑयल प्रेसिंग यूनिट्स में जा रहे थे, जहाँ पे वो तेल घानी ऑयल प्रेसिंग और लेकिन वो लड़कियाँ अपने आप जा रहे थे। तो UN ने बोला कि ये क्या, लेकिन ये तो लड़कियाँ अपने आप जा रही हैं, ये तो ट्रैफिकिंग नहीं है। तो हमने कहा हाँ, लेकिन इनमें भी वल्नरेबिलिटी और रिस्क है। नहीं, अगर ट्रैफिकिंग नहीं है हमें वो नहीं देखना है, तो बाकी भी पॉलिटिक्स चलता है जिसके वजह से वो अनदेखा रहता है। एंड फाइनली आई थिंक मतलब ये स्टडी डेफिनेटली आपका जो प्रिकैरिटी और इनफॉर्मेलिटी का एक्चुअली जो समझ है वो बहुत और रोबस्ट कर सकता है। इनफैक्ट combination of all your studies can really make the these concepts of what is precarious work, what is informal work. This is the height of informality in that sense, that actually it's like they're just eye candy but they're not. So there's that's the issue. And then finally the role of the organization, मतलब जो आजीविका का आप बोल रहे हो कि आपका प्लान है कुछ क्या करने का, ये मैं मतलब हो सकता है आजीविका का अलग प्रिपेयर्डनेस हो, लेकिन मैं बोल रही हूँ जो हम 30 और संस्थाओं के साथ काम करते हैं, बहुत टाइम वो लोग तैयार नहीं होते हैं एडोलेसेंट गर्ल्स के साथ काम करने के लिए, क्योंकि उनका वो समझ है। और पूरा सेक्टर का मैं बोल रही हूँ बहुत, क्योंकि ये नया मुद्दा है, नया ग्रुप है, तो धीरे धीरे उनके साथ काम करते हैं। और डर ये रहता है कि हम भी जो एंग्जाइटीज़ उनके समाज में हैं वो हम मिरर करेंगे। लाइक हम भी उनके माँ बाप बन जाएंगे, मतलब उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश में, या विल बी टू प्रोटेक्टिव। और उनको अगर मोबाइल पे बात करना है लड़कों से तो करें, मतलब वो हमारा क्या रोल है उसमें, हम क्या अपना हमारा परसेप्शन क्या है, हमारा कैपेसिटीज़ क्या है ये सब इश्यूज एड्रेस करने का। अगर आप बोल रहे हो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट हो सकता है और इवन अफेयर्स हो सकते हैं, तो इफ़ देयर इज़ अ प्रेगनेंसी तो और वो आती है तो हम क्या करेंगे? मतलब you have to think ahead a bit कि what are the foreseeable scenarios. But anyway, other than that, I think it's really a very, very valuable study to really build our understanding of adolescent was what exactly is the reason why these young girls actually come out of the home and join the workforce? I mean, I'm sure you know it, but in the presentation it wasn't really clear. And that's a very, very important question. For this age group, why does it come out of the home and work? And this thing about emancipation and liberation, वो झलक जो आप बोल रहे हैं, वो भी एक बहुत interesting और important aspect है कि उनको एक sense of freedom जो लगता है जो कभी घर में नहीं मिला हो, उसके वजह से भी वो खींच के आते हैं. So is that also something to think about? और अगर वो मार्केट में जा रहे हैं क्या स्टैंड टू मच सेरेमनी, तो हम लोग बहुत ज़्यादा उद्घाटन और समापन और वो सब हमारे यहाँ बहुत सहज तरीके से नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को समेटना ज़रूरी होता है. मैं उसकी कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि उसका शायद समय नहीं है, और हर अध्ययन को पर्याप्त समय मिला है, आपको फीडबैक मिला है और बहुत इंसाइटफुल फीडबैक मिला है. बट स्टिल आई थिंक एज अ फाइनल word, not famous last words, but as something that we want to leave us with. और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप सब कहें, मे बी विपुल कुछ कहें तो आप सबकी तरफ से कह दें, क्योंकि ये सबको भांप लेते हैं. कॉमन कॉज से हैं तो ये ज़रूर कलेक्टिवली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो आई वुड लाइक विपुल टू sum it up for us for the day and leave us on a note of anything short of a PIL. Thank you very much. represent करना भी बहुत मुश्किल है, बहुत बड़े-बड़े लोग ऐसे लोगों को और इनको भांपना भी बहुत
तो इसलिए वो तो प्रयास भी नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब भी कभी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि मैं कल नहीं आ पाया, क्योंकि कल मैं कहीं और, लेकिन ये भी है कि जब भी आजीविका के साथ कुछ भी करने का मौका मिलता है हमेशा बहुत कुछ सीख के जाते हैं और कुछ बताने के लिए बहुत ज़्यादा होता नहीं है। 2-3 पॉइंट्स मैंने नोट किए इसके दौरान। मुझे ऐसा लगा कि बहुत कुछ हो रहा है, खासतौर से जब इतने सारे लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जब लोगों के पास जाते हैं तो कहानी एकदम अलग होती है। मतलब हमारे साथ, जब मैं यहाँ पे पत्रकार भी था, मैं यहाँ पे संपादक था जयपुर में, और हमेशा ऐसा हुआ, एक बार किसी बहुत बड़े संस्थान ने हमसे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि हम आपको रोज़ एक एड्स के ऊपर कहानी देंगे और आप रोज़ चलाएंगे। तो उन्होंने कहा MOU साइन कीजिए, वो मैंने कहा MOU नहीं करेंगे, हम आप दीजिए, हम चलाएंगे। उन्होंने कहानियाँ देनी शुरू की, इतनी थकी हुई और बेकार कहानियाँ। मुझे लगा कि अरे आप इतने बड़े NGO हैं, आप लाखों रुपए, और उनको बहुत बड़ी फ्रेंच NGO से वो मिलता था पैसा, और बल्कि उसकी फ्रेंच NGO की जो बहुत करता धरता थी फ्रांसीसी वुमेन, वो आई हमारे दफ्तर, पूरी टीम से मिली और हमने तस्वीर भी छाप दी, लेकिन कहानियाँ इतनी थकी हुई। तो हमने अपने जो, जैसे आपके ये सारे लोग दूत हैं, ये जाके चीज़ें ला रहे हैं, ऐसे ही हमारे बहुत सारे रिपोर्टर्स थे। तो मैंने कहा बड़े परेशान हो गए, हमने कहानी कह दी है, अखबार में लिख दिया है कि रोज़ एक कहानी देंगे, तो यार जरा जाओ, लेकिन जाना ज़रूर और फिर कहानी लेके। मैं आपको क्या बताऊं क्या कहानियां लेके, आप लोगों के इलाके की कोटरा से एक ने कहानी, अयोध्या जी एक थे, वो गए और वहाँ अस्पताल में जाके उन्हें कोई कहानी मिली, वो बड़े विचलित हुए और वो गाँव में गए और वहाँ पता लगा कि एक महिला ने अपनी जाति पंचायत के सामने ये मांग रखी कि उनकी मीटिंग होती है, तो उसमें उसने कहा कि मुझे अपने पति की बहन बना दिया, मतलब उसको मेरा भाई बना दिया। तो उन्होंने कहा मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसी तो कोई पहले वो नहीं आई। तो पता लगा कि वो बाहर गया था, ट्रक चलाता था, वो एड्स लेके वापस आया और उस महिला का कहना था कि मुझे जब से मैं इस परिवार में आई हूँ, मुझे इतना प्यार और दुलार मिला है अपने इन-लॉज का कि मैं उनकी बेटी हूँ, उनको छोड़ना नहीं चाहती और इसे भी नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन इसके साथ में रह नहीं सकती पति पत्नी के रूप में। तो कहानियाँ जैसे ही आप बाहर निकलते हैं आपको बहुत कुछ ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें मिलती हैं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जागीर जो पूंजी है आजीविका की, वो यही है कि आप जैसे लोग जो कि भाषा बोलते हैं यहाँ का इडियम समझते हैं और जो आप लोग जो जुड़े हुए हैं वहाँ से जो कहानियाँ लेके आए। तो मेरी आपसे ये वो है कि अगर आपको अच्छी कहानियाँ छोटी छोटी अपनी भाषा में ही लिख लें, हो सकता है आजीविका साल के एंड में एक सक्सेस स्टोरीज की किताब निकालें जिसमें कि आप ये सब कहानियाँ, या सक्सेस स्टोरीज ना भी हो, आपकी कहानियों का कुछ संकलन हम कर सकें। मेरे ख्याल बहुत बड़ा डॉक्यूमेंटेशन एक उसके साथ में हो सकता है। और हर एक इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि आंकड़े जो है वही डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन तो कहानियाँ, एथनोग्राफीज है लोगों की जो, तो वो सब अगर आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था कि जो एक अपस्केल करना हमारे मन में होना चाहिए कि, और जो हमने चीज़ें की हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी मैं आप लोगों की चीज़ें देखता हूँ, बल्कि आपने जो लिखा है वो पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि आजीविका को कम से कम 10 प्रदेश में होना चाहिए। तो क्या ये ऐसे मतलब हम एक जगह पे राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पे ये करते रहेंगे, या क्या हम हिम्मत करके कोई और बड़ा कदम करके इसको बड़ा अपस्केल कर सकते हैं? मतलब मुझे लगता है, मेरा अपना मानना है कि ये नेशनल लेवल का एक वो है, प्रयोग है और बहुत सफल प्रयोग है, और इसको जो है डब्बे में बंद रखना जो है वो इट्स अ क्राइम, तो हमें इसको जो है बाहर निकालना पड़ेगा। तीसरी बात ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम लोगों को सामने अपने चलते चलते दिखाई पड़ती हैं, जैसे कि इनोवेटिव सॉल्यूशंस होते हैं कई चीज़ों में कि हम देख रहे हैं, हमें लगता है कि सरकारी योजनाएं ज़्यादातर बेकार हैं, तो ये मतलब हम उनका बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। और अगर हम लोग जैसे कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट करें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, तो हर 10वें 12वें आदमी जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा आदमी आता है, कोई ना कोई अच्छा DM आता है, बहुत कचड़ा भी आता है, लेकिन अच्छा DM, अच्छा SP भी आता है। और जब भी आते, मैं आपके यहाँ मिला हूँ डूंगरपुर में, यहाँ पे जब प्रेम किशन जी थे
उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर बहुत अच्छी चीज़ें की थी आदिवासी उसमें, और कई लोगों से मतलब मेरी मुलाकात हुई जो राजस्थान में मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा काम करके गए। तो जब होता, अगर मान लीजिए कोई ऐसे करता है कि इनका एक कन्वर्जेंस का प्रोग्राम है और ये कहते हैं कि नरेगा में अभी भी नरेगा को बर्बाद करने वाले लोग इतने दुश्मन हैं नरेगा के कि आप कह सकते हैं कि सम पीपल आर नोन बाय देयर एनिमीज। तो अगर सम, मुझे लगता है कुछ योजनाएं भी जो है ना अपने दुश्मनों के द्वारा जानी जाती है, तो उसके इतने दुश्मन हैं। अगर नरेगा को गड्ढा खोदने की स्कीम से अलग बनाना है तो आप जो देखते हैं गाँव में लोग जो हैं वो कोई अगर मान लीजिए कि 10वीं फेल या 11वीं पास या 9वीं पास की लड़कियाँ हैं, इनकी अगर इस तरह की लिस्ट बने और उनमें से कुछ लोगों को नरेगा के तहत नरेगा से पैसा मिले और उनको ट्रेनिंग दी जाए, मान लीजिए कि सैनिटरी नैपकिन्स बनाने की ट्रेनिंग है या कोई भी इस तरह की ट्रेनिंग है जो कि जिसका ज़मीन से जुड़ाव है, जिसकी मांग आप कर सकते हैं। कोई इस तरह की नर्सिंग की ट्रेनिंग है, मान लीजिए नर्सिंग के मॉड्यूल्स हैं, नर्सिंग 4 साल का कोर्स है, क्या ऐसा हो सकता है 6-6 महीने के 8 मॉड्यूल्स बन सके, या पहला 1 साल का और उसके बाद 6 मॉड्यूल्स बन सके 6-6 महीने के। तो अगर कोई 8वीं 10वीं कक्षा पास लड़की एक मॉड्यूल पास कर लेती है तो वो मिडवाइफ बनने के लिए काबिल हो सकती है। उसके बाद मान लीजिए वो 4 साल के बाद 2 मॉड्यूल्स और कर ले तो वो कुछ और सीनियर मिडवाइफ या कुछ इस तरह का कर सकती है। तो ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए आप सैनिटरी नैपकिन बना रही हैं तो वो उसका एक बड़ा भारी हिस्सा NRHM से आ सकता है। उनको पता नहीं पैसा का क्या करें, रियली प्रसूति घर में हो, इसके ऊपर एक महिला के ऊपर 1800 रुपये 2200 रुपये खर्च हो रहे हैं और वो पता नहीं पैसा कहाँ जा रहा है। तो अगर कोई समझदार डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स मिल जाए 2-4, आप अगर ये कहें कि हम ये करके दिखाते हैं आपको कि कहीं से नरेगा से पैसा आ रहा है किसी चीज़ का, आप मॉड्यूल्स मतलब कहने का मतलब ऐसा नहीं कि मॉड्यूल्स ही बना दीजिए, लेकिन ये संभव है। तो इस तरह की कन्वर्जेंस हो सकती है कि आंगनवाड़ी में जगह मिल जाए, नरेगा से वेजेस मिल जाए और NRHM से कुछ पूंजी मिल जाए, कुछ पैसा मिल जाए, स्किल मिशन से कुछ पैसा आ जाए और आप कहें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कन्वर्जेंस कीजिए ना स्कीम्स का, और उसमें पैसा तो सारा वहीं आ रहा है। अगर ऐसा हो सकता है, इस तरह की कोई सक्सेस स्टोरी अगर हम लोग बना सकते हैं तो ये भी मेरे ख्याल से नेशनल लेवल का एक बड़ा काम होगा। अंत में मैं ये भी कहना चाह रहा था कि जो जैसे कि हम कह रहे हैं कि हम सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठाएं, उसी तरह से सरकारी इंस्टीट्यूशंस भी जो बन गए हैं, जैसे कि कई जगहों में जो प्रयोग हो रहे हैं, जैसे कि सीड बैंक्स हैं कई जगहों पे, SHGs तो आपके यहाँ भी बहुत है राजस्थान में, बल्कि इतने ज़्यादा हैं कि गिने नहीं जाएंगे और कुछ काम का ज़्यादातर काम नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी जहाँ पे भी SHGs अच्छे बने हैं तो वहाँ पे आप लोगों ने इतने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है, सामाजिक पूंजी, आर्थिक पूंजी, इंसानी पूंजी। मतलब सामाजिक पूंजी क्या है? अगर महिलाएं और कुछ नहीं तो बैठेंगी 20 महिलाएं हर हफ्ते तो सामाजिक पूंजी का निर्माण है। सोशल कैपिटल लिव्स बिटवीन पीपल। तो जब आप सिर्फ बैठेंगे और सिर्फ बातचीत करेंगे तो सामाजिक पूंजी का निर्माण होगा, और वही एक बहुत बड़ा सारे ही मतलब किसी भी अच्छे बड़े आंदोलन के लिए ये बहुत बड़ा होगा। तो मुझे लगता है कि सोशल चेंज की दिशा में तो आप लोग बढ़ ही रहे हैं। डेटा कलेक्शन आप लोगों का बेहतरीन है, इसका डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। आप लोगों की एक बात मैं और कहना चाहूँगा अंत में, बिलीव इट और नॉट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, समाचार पत्र हो, रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो, यूनिवर्सिटी हो, लीडरशिप मैटर्स। आप के पास बहुत बेहतरीन लीडरशिप है, मतलब ये मैं देख रहा हूँ, बल्कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये मानते हैं कि वे व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं है, सिस्टम नहीं, व्यक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तो अगले 60-70 साल मुझे नहीं पता, हम चले जाएंगे इसके बाद शायद नहीं होंगे, सिस्टम बहुत सुंदर बन जाएंगे देश में। बेहतरीन आप लोगों के पास लीडरशिप है, बहुत अच्छी सामाजिक पूंजी है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। सोशल चेंज सब लोगों को शामिल करके सबके साथ चलेंगे। जिंदाबाद। Thank you, Vikul. I think the closure will not be complete without bringing Priyanka here. आ जाओ सर। और बड़ी चीज़ है प्रियंका के साथ, प्रियंका ने बहुत मेहनत की है।
पास डरो मत, फोन करो, डरो मत, शोध कर। डरो मत, शोध करो। तो इन सब से तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? ताकि यहाँ से जब इनके जाने से पहले, ताकि ये इस मतलब भार से उठे कि ये अभी मुक्त नहीं हो। हाँ, आगे की चीज़ है ताकि अपने आप को मुक्त ना महसूस करें। You should not be liberated from the event, but should feel charged with it. What is your final word to them? Please let them know. ठीक है, okay. I'm rarely in this position जहाँ मैं कुछ भी बोल सकती हूँ and apparently that's okay. But मैं first of all I'd really like to thank all of you. आप सब बहुत व्यस्त हैं. I'm sure there's a lot of fatigue with events. ना आप लोगों को serially events attend करने पड़ते हैं. You asked everywhere to come and comment. So it must be exhausting at some level. लेकिन आपने genuinely सुबह से engage किया. I'm sure at some points हम थोड़े incoherent हुए होंगे, but you gave us the margin. You probably completed our sentences, you know, in your head. So thank you for that. आपके inputs as always are invaluable. Now going forward, हम इस शो को communicate कैसे करें? Who should be our audience and in what ways to be communicated? आप तो संवेदनशील audience हो, you are empathetic listeners. अगर जैसे for example पिंडवाड़ा की study at some point is to reach the industry. So what is that mode of communication? हम कोशिश करेंगे उसमें आपके inputs की हमें ज़रूरत होगी. So we will be bugging you going forward. With our methodology, with our writing, or we'll come to you, we'll come to your office, please give us time. And उसके साथ ही हम कुछ knowledge outputs के बारे में सोच रहे हैं. We think of an anthology, we think of kind of making a collection of our knowledge work. उसको thematically हम कैसे organize करें, sharpen करें. You know, it needs to be a bit clutter breaking. There's a lot that comes out in migration these days. How do we position this? How do we locate this in the larger sector so that it's valuable and it does justice to our findings? इन सारी चीज़ों को लेके we will be in touch and we will come to you and I'm sure you'll make time for us. So thank you once again. कैसे करते हैं और उसका परिणाम क्या था वो भी आज आपके सामने रखने का एक मौका मिला. वो प्रियंका का बहुत बड़ा योगदान है. तो ये जो पूरी टीम है, एक छोटी सी भेंट इस 1.5 साल की शक आज थोड़े बहुत दूर हो गई. तो एक बहुत बड़ा आभार व्यक्त करते हुए हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो